students. Now we are going to read an important article. Article is to find out electric potential. To find out electric potential due to an electric dipole. Okay, to find out electric potential due to an electric dipole. So what is background of this article? Suppose this is an electric dipole, minus q plus q. This is my midpoints. We have to find out electric potential at any point surrounding to this dipole. So there will be point, there can be anywhere. Suppose this point, this point, this point. So what is the location of these points? The location of these points is measured from O. This is R. Now this is angle theta. Clear? So character of dipole is P. The direction of P or the direction of electric dipole moment remains towards from minus q to plus q. तो P की डायरेक्शन किधर है? P की डायरेक्शन जो है माइनस q से प्लस q की तरफ है. This is character of an electric dipole. This is character of electric dipole. So what is mathematical form of this statement? To find out electric potential, it means you have to find out V. So V, to find out electric potential due to an electric dipole at any point. Okay. So electric dipole moment character is P, which is known, and location of point is R theta, which is also known. So what is the idea? This is the idea. V is function of PR theta. V is a function of PR theta. What is P? Electric dipole moment. What is R theta? This is location of the given point. And you have to find out V. It means हम एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं किस किस के बीच, V, P, R और थीटा के बीच में. क्लियर? तो ये हमारा जो है वो आइडिया है. तो यदि आपको कहा जाए कि व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ दिस मैथमेटिकल फॉर्म, सो यू कैन से दैट टू फाइंड आउट electric potential due to an electric dipole at any point means r theta. Now we start. How will you derive this formula? So we consider there is an electric dipole. There is an electric dipole. So again we repeat the topic of this topic, to find out electric potential due to an electric dipole at any point. So we consider this is electric dipole, this is electric dipole, this is midpoint, and we take a point P here. Then location of this point is R1 and this is R, angle is theta, and corresponding to point B, this is R2, this is A, this is B, this is midpoint O. Okay. You have to find out electric potential at P. This distance is A. This is also A. Now, so we consider an electric dipole
we consider an electric dipole having electric dipole moment, electric dipole moment P. We have to find out electric potential at P, at point P, due to electric dipole where OP, where the position of point P is r theta. So we consider an electric dipole having electric dipole moment P. We have to find out electric potential at point P due to electric dipole where the position of point P is r theta. ये पॉइंट की पोजीशन है. So what is idea about this article? This is, we have to find out potential due to minus q charge at. So electric potential at P, electric potential at P due to minus q charge. So what is general formula of potential? kq upon r. So we can write V1 equal minus kq upon charge is minus q, distance is r1. This is equation first. Now electric potential at P due to positive charge plus q charge. ठीक, this will be V2 equal kq upon r2. This is equation second. So net electric potential at P, the total electric potential at P, this will be V equal V1 plus V2. This is third. So from first, second and third, क्यों V1 की वैल्यू आ चुकी, V2 की वैल्यू आ चुकी, तो फिर कितनी हो जाएगी V इक्वल V1 प्लस V2. तो फिर ये कितनी होगी, तो ये देखिए from first, second and third, from first, second and third, V equal minus kq upon r1 plus kq upon r2. ठीक है, so kq is common, तो V equal kq minus 1 upon r1 plus 1 upon r2. ठीक है, kq कॉमन आ गया. नाउ V इक्वल kq, यहां से एलसीएम क्या हो गया r1 r2 को 1 - 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस r2, इससे करें r1. ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सिस्टमैटिकली, तो ये आप नोट कर सकते हैं, तो नोट कीजिए. तो इस
इसको हम सिस्टमैटिक करेंगे। क्या आ जाएगा? V इक्वल के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R2। दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, ये 4 इक्वेशन हो गए। लेकिन हमें नोन क्या है? R, थीटा और P, ये हमें नोन है। तो फिर R1 और R2 की जो टर्म है उसको नॉन टर्म में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, R1 R2 गिवन नहीं है, गिवन है R, थीटा और P। तो फिर कैसे हम R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करें? तो फिर यहां एक नया टॉपिक बनने जा रहा है तुम्हारे पास इसी में, टू फाइंड R1। तो कैसे R1 को हम फाइंड आउट करेंगे? देखिए, R1 को फाइंड आउट करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस PO को और C तक इंक्रीज करते हैं, PO को C तक इंक्रीज करते हैं और फिर यहां ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। ठीक है, तो फिर ये कंस्ट्रक्शन हो गई आपके पास में A से। तो फिर इस सिचुएशन में जो A से P तक की डिस्टेंस R1 है, वो डिस्टेंस यहां से P से और C की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, ये एंगल थीटा है, इसलिए वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा, तो दिस विल बी थीटा। ठीक, तो फिर ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। तो कैसे फाइंड आउट करें? देखिए, यहां कंस्ट्रक्शन क्या किया? AC परपेंडिकुलर ड्रा, AC परपेंडिकुलर PC। नाउ R1 इक्वल AP, दिस इज इक्वल टू PC। क्यों? यहां से यहां आप कंपास रखते हो, तो फिर वो कंपास जो है, यहाँ पेंसिल आपकी A से भी जाएगी और C से भी जाएगी, तो ये डिस्टेंस दोनों सेम हो गई। कहां से कहां तक की? P से A तक की, या AP की, या CP की। इसको हम CP भी लिख सकते हैं, CP कंपेरेबल टू CP। और CP को कैसे लिख सकते हैं? OC प्लस OP। ठीक, बट OP प्लस OC, OP प्लस OC, O से P तक की और O से C तक की। R1 इक्वल OPR प्लस, तो ये R कहां से? O से P तक की, OC निकालें, मालूम नहीं है तो हम एक बार से इसको फाइंड आउट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 5। देखिए, यदि हम राइट ट्राइंगल OCE ले लें, तो इन राइट ट्राइंगल OCE तो क्या निकालना है आपको? OC, ये परपेंडिकुलर एंगल की सामने की साइड, ये बेस और हाइपोटेन्यूज हमें मालूम है, तो फिर हमें बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज जो है वो मालूम है, तो फिर cos थीटा फॉर्मूला सेलेक्ट हो गया। तो cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज OC बटे में OE, दिस इज इक्वल टू OC अपॉन में E। तो व्हाट इज OC? OC इक्वल A cos थीटा, दिस इज इक्वेशन 6। अब क्या कर दिया जाए? 6 की वैल्यू फिर तुम्हें पुट कर दी जाए, तो 5 and 6 क्या रिजल्ट आएगा? R1 इक्वल R प्लस A cos थीटा, दिस इज इक्वेशन 7। तो आपने R1 की जो वैल्यू है वो R और थीटा की टर्म में फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात क्या आती है, देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम? R2 की। देखो, R1 की हो गई, R2 की वैल्यू चाहिए। R2 की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां से हमने ये एक परपेंडिकुलर BD डाला। ठीक है, ऐसा करने से
P से B तक की डिस्टेंस जो R2 है वो किसके इक्वल हो जाएगी, PD के इक्वल हो जाएगी। तो फिर PD की जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। तो अगेन एक टॉपिक हम डालेंगे क्या, टू फाइंड आउट R2, टू फाइंड आउट R2, ठीक है। तो R2 कैसे फाइंड आउट करें, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन है, BD ड्रा BD परपेंडिकुलर OP, ठीक, ये कंस्ट्रक्शन है। तो फिर ऐसा करने से R2 जो किसके इक्वल है, PB या BP कंपेरेबल टू इक्वल किसके हो गया, DP। और DP को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए D से P तक की डिस्टेंस, OP में से OD घटा दें, OP माइनस OD, लेकिन R2 इक्वल व्हाट इज OP, दिस इज R माइनस OD, लेकिन हमें यहां OD निकालना है। दिस इज इक्वेशन 8। तो अब हम OD कैसे निकालें, तो राइट ट्राइंगल ले लें BDO, क्योंकि ये BD परपेंडिकुलर डाला था। तो इन राइट ट्राइंगल BDO देखिए क्या चाहिए हमें चाहिए यहां से OD की वैल्यू, और OD जो है वो क्या है, एंगल के सामने साइड, ये DB तो क्या हो गई परपेंडिकुलर, ये क्या हो गई बेस चाहिए, हाइपोटेन्यूज मालूम है। तो फिर इन राइट ट्राइंगल BDO, तो फिर वही फॉर्मूला सेलेक्ट हो गया, cos थीटा इक्वल क्या, बेस क्या है OD अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है A, देन cos, तो फिर OD इक्वल A cos थीटा, दिस इज इक्वेशन 9। अब इस OD की वैल्यू उठा करके कहां रखते हैं, 8 में, तो फॉर्म 8 एंड 9 हो जाएगा। तो मैं वहां पर कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी इक्वेशन से, 8 एंड 9 बाय यूजिंग 8 एंड 9 बाय यूजिंग इक्वेशन 8 and 9, then value of R2 क्या है, R2 इक्वल R माइनस A cos थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 10। तो अब तुम ये देख सकते हो कि R1 की जो वैल्यू और R2 की जो वैल्यू जो आई है, ठीक है। तो फिर 7 में जो है वो किसकी वैल्यू आई थी, R1 की, और 10 में किसकी वैल्यू आई है, R2 की। और इनको हम किस में पुट कर दें, इक्वेशन 4 में पुट कर दें। तो फिर 4, 7 and 10 by using equation 4, 7 and 10 क्या लिखे, R1 R2 की वैल्यू पुट करनी है। R1 की वैल्यू आपके पास 4 में है, R2 की वैल्यू कहां है, R2 की वैल्यू 10 में है। तो फिर V इक्वल KQ क्या था, R1 माइनस R2। तो R1 की वैल्यू क्या आई थी, R प्लस A cos थीटा, R1 माइनस R2 माइनस करेंगे तो माइनस R माइनस माइनस प्लस A cos थीटा, अपोन में दोनों की मल्टीप्लीकेशन, R प्लस A cos थीटा इंटू R माइनस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा, ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब सॉल्व करें, R इज कैंसिल आउट, तो क्या रह गया, V इक्वल KQ इंटू 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्यों, एक बार प्लस और एक बार माइनस, फॉर्मूला A प्लस B और A माइनस B, और ऊपर कितना आएगा 2A cos थीटा, लेकिन V इक्वल K
Q इंटू 2AP P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके पास में पोटेंशियल आ गया। ठीक है, R थीटा पे, तो ये इक्वेशन कितनी हो गई? ये इक्वेशन हो गई 11। अब इसको हम और डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं अलग फॉर्म में भी लिखता हूं, देखिएगा। तो फिर V इक्वल K की वैल्यू पुट कर दें, P cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 12 दे दें, यहां मैंने K की वैल्यू पुट की है, तो एक फॉर्म ये हो गई। लेकिन हमें यहाँ एक लघु द्विध्रुव की बात करनी है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो 2a होती है, ये 2a जो डिस्टेंस होती है, ये 2a डिस्टेंस बहुत कम होती है। किसके कंपैरिजन में? इस r के कंपैरिजन में। तब ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल कब? जब 2a is very less than r. For short electric dipole 2a is very less than r, then a square can be neglect, so a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जो टर्म है वो आउट हो लेगी, तो फिर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो फिर v इक्वल P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्म होगी फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए होगी। तो अब आप इनको नोट कर सकते हैं, तो नोट कीजिए, फिर आगे हम आते हैं। ठीक है, अब 13 से हमें क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली वो हम देखते हैं यहां। एक तो ये कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ R स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या मिला कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे बिहेव करता है, V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसका बिहेव हमारे पास में अलग होता है, और वो R³ के टर्म में जाती है, और जबकि ये जो है वो स्क्वायर के टर्म में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। और भी हम इसको लिख सकते हैं, देखिए वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहिए कि वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे, इसको वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में पोटेंशियल को कैसे लिखें? तो बाय यूजिंग इक्वेशन 13, बाय यूजिंग इक्वेशन 13। ध्यान दें 13 पे क्या है? V इक्वल PR cos थीटा, मैंने R से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और R से नीचे कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। तो एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल P वेक्टर है, R वेक्टर है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। ये आपके पास में जो है वो इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? ये 14 आ गई। ठीक है, क्या किया? इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख रहे हैं? R से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर PR cos थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ हो जाएगा। क्लियर? तो एक फॉर्म आपके पास में ये आ गई। तो फिर वैसे ये फार्मूला हमारे लिए
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे जो है हमें एमटीआर करना है, जो है इसको याद रखना है। तो फिर नेक्स्ट बात आती है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस नंबर फर्स्ट केस क्या है? देखिए फॉर्मूला हमारे पास था, फॉर्मूला था v इक्वल p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर था। मान लीजिए कि ये पॉइंट p जो है वो इनको मिलाने वाली लाइन में ही आ जाए, ठीक, इसकी मिलाने वाली लाइन में आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर उस केस में हम थीटा की वैल्यू 0 कर देंगे। तो फिर इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री, इसको हम एक्सियल पॉइंट भी कहेंगे, फॉर एक्सियल पॉइंट थीटा इक्वल 0, तो फॉर एक्सियल पॉइंट, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 कर देने से ये पॉइंट P इन लाइन में आ जाएगा। तो फिर v एक्सियल इक्वल P cos 0, क्योंकि थीटा की जगह 0 पुट कर देंगे, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो फिर कितना आ गया? v एक्सियल इक्वल P cos 0 1 P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हमारे पास में एक स्पेशल केस बन गया। तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं। कीजिए, फर्स्ट स्पेशल केस क्या है कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, अर्थात पॉइंट क्या बन जाए? एक्सियल पॉइंट बन जाए। ठीक है, अब हम स्पेशल केस नंबर 2 पर आते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिएगा, फिर हम सेकंड केस पर आते हैं। तो स्पेशल केस सेकंड क्या कहता है? देखिए, इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, ये P पॉइंट इस लाइन AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तब उसको हम जो है इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे। कौन सा पॉइंट कहेंगे? इक्वेटोरियल। जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 90 डिग्री। इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, देन V इक्वेटोरियल। तो फार्मूला क्या बनेगा? देखिए, P cos 90, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो P cos 90 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। लेकिन cos 90 0, तो V इक्वेटोरियल इक्वल क्या हो गया? 0। तो दो स्पेशल केस हुए कि नहीं? एक थीटा इक्वल 0 डिग्री, तब P पॉइंट इसी लाइन में आ जाएगा और एक्सियल पॉइंट बन जाएगा। और जब यहां आपके पास थीटा 90 हो जाए तो P पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ जाएगा AB के, और वो इक्वेटोरियल बन जाए, इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाएगा। तो फिर इस केस में तो P cos 90 V इक्वेटोरियल क्या हो गया? 0। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो है वो पोटेंशियल 0 होता है। तो आप इसे भी नोट कीजिए। ठीक है, तो फिर ये एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल हो गया। लेकिन यहां से एक इंपॉर्टेंट बात और आती है कि सपोज कीजिए कि जब आपके पास में ये P पॉइंट इक्वेटोरियल है और उसके ईच एवरी पॉइंट पोटेंशियल विल बी 0, तो फिर उस केस में यदि हम किसी चार्ज को इस इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग लेकर के जाएं तो हमें वर्क डन 0 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वर्क डन 0? क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन इक्वल चार्ज इनटू पोटेंशियल, बट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज 0, सो वी मल्टीप्लाई चार्ज, इससे 0 से चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो फिर ये कह सकते हैं
कि आपके पास में जो है वो वर्क डन क्या होगा, 0। कि व्हेन वी ब्रिंग ए चार्ज अलोंग इक्वेटोरियल लाइन देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी 0। तो ये बात भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आज इतना ही होगा, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। थैंक यू।